लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH Kashmiri. MDH। Well, days after self-styled pastor Bajinder Singh was sentenced to life in a 2018 rape case, another pastor from Punjab's Gurdaspur district has been accused of raping a 22-year-old woman and allegedly forcing her into a botched abortion that led to her death. A self-styled pastor in Gurdaspur city of Punjab, Jashan Gill, is accused of raping a 22-year-old woman with the family, and the father of the daughter alleged that his daughter, a BCA student at that time, was misled by the pastor. Ladies and gentlemen, while this case dates back to 2023, an FIR has been registered, but this self-styled pastor has now gone underground. Ladies and gentlemen, the entire spotlight has been on these fake pastors operating in the state of Punjab. Who exactly is actually giving them a completely free run? How is it that for months put together, even years now, that they have gone completely unchecked? And now, after Republic's investigation and relentless coverage of Pastor Bajinder, he's finally been convicted. But ladies and gentlemen, it does not end with the story of Pastor Bajinder. Now you have Pastor Jashan Gill, a 22-year-old woman whose family is now moving from pillar to post, seeking justice on this entire issue. First, take a look at the story of this 22-year-old woman. Days after controversial Pastor Bajinder Singh was sentenced to life in a 2018 rape case, another self-styled pastor in Punjab stands accused of a chilling crime. In Gurdaspur, Pastor Jashan Gill has been accused of raping a 22-year-old BCA student and allegedly forcing her into an abortion that led to her death. The victim's father alleges that his daughter was misled by Gill and subjected to exploitation, a trauma that ended in tragedy. ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ASI ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 174 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ He claims Punjab police refused to act, protected the accused and even took bribes while his family was threatened and forced to flee their village. This case comes in the shadow of Bajinder Singh's conviction, raising concerns about abuse of faith and power under the garb of religion. With serious allegations of rape, forced abortion, police inaction and threats, the family now turns to the courts, hoping for justice. Ladies and gentlemen, Jashan Gill is right now on your screen. This fake pastor who now claims that he has freed people from cancer and various other ailments. Pretty much a similar case that we had seen when Pastor Bajinder was moving from one city to the other. With absolute political support, did actually manage to convince a lot of people that they have some sort of supernatural powers. In fact, Pastor Jashan Gill also claims to have same sort of supernatural powers, and that is the reason why what you see in one of these kirtans that are actually taking place, you would have people all clapping and making themselves believe that he is the self-incarnation of some sort of a god. But the reality is that these fake pastors were basically carrying on with their fakery and continuing to fool people. In fact, tonight on This Is Exclusive, we're going to tell you the story of the 22-year-old woman and her family, how they were cheated and the family till date hasn't even got justice. Let us
also introduce right now Simranjeet Maan, who's joining us on this broadcast. Simranjeet Maan is a social activist who has been fighting this case along with the victim's father. We withholding the name of the victim as well as the family members, because remember, ladies and gentlemen, many of them who have spoken out, whistleblowers in these cases, they've all been targeted. Simranjeet Maan, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये 2023 में ये केस रजिस्टर होता है, एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बावजूद पास्टर जशन गिल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आखिरकार हुआ क्या था और लोगों को, देश में आज जितने लोग देख रहे हैं, ये आखिरकार पास्टर जशन गिल है कौन? देखो, ये पास्टर जशन गिल जो एक गुरदासपुर का रहने वाला है, जो गुरदासपुर में एक चर्च चलाता है। गुरदासपुर में और जम्मू में 2 चर्च है इस बंदे की। जब लड़की गुरदासपुर में स्टूडेंट होती है, स्टूडेंट पढ़ती है वहां पे, और वहां पे चर्च में जाती है दीनानगर में, और ये जशन गिल दीनानगर में चर्च में प्रेयर कराने के लिए जाता है दीनानगर में, और दीनानगर में लड़की को बोला जाता है कि तुम मेरी चर्च में आना शुरू कर, गुरदासपुर में जो चर्च है। उसके बाद में जो जशन गिल है उस पे इतनी गंदी हरकत करता है, उसके साथ गंदी आंख रखता है, उस पे कमेंटबाजी करना और छेड़छाड़ करना, ऐसे ये काम करने, हरकतें करना शुरू कर दी इसका जशन गिल ने। जो जशन गिल है ये एक पादरी माना जा रहा है गुरदासपुर का, ये क्रिश्चियन धर्म में संबंध है। और उसके बाद जो लड़की को ये टॉर्चर करना शुरू कर देता है, हाँ बिल्कुल, जो वीडियो में दिखाई साफ नजर आ रहा है, और लड़की को ये टॉर्चर करना शुरू कर देता है ये। उसके बाद लड़की को बोलता है मेरे साथ फिजिकल हो, और उसे जबरदस्ती करना शुरू कर देता है ये बंदा। उसके बाद में जब इसको होटल में लेके जाता, उसके साथ बलात्कार करता है, एक नहीं 10 बार बलात्कार करता है इसको, लड़की को बलात्कार करने के बाद में जशन गिल उसको डराना धमकाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में लड़की का जब प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की की 2 दिन के बाद मौत हो जाती है, और लड़की जो पीड़ित है, जो जशन गिल ने उसको डराया धमकाया, उसके परिवार को सामने मीडिया से आने से मतलब हरासमेंट टोटली, और पुलिस सुनवाई नहीं हुई हमारी इनकी। 3 महीने एफआईआर दर्ज कराने के चक्कर में हम दर की ठोकरें और पंजाब सरकार की अपील की, हमारा कुछ नहीं हुआ। और हमने कल पीसी की चंडीगढ़ सेक्टर 27 में, और वहां से इंस्पेक्टर का कॉल और जो समन स्टाफ होता उनका कॉल कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, हम हमारी हेल्प करो। हमने बोला सिमरनजीत जी, मैं इस केस के ऊपर वापस आपके पास आऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस वक्त पीड़ित के पिता हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि लोग ये पूछेंगे ये सवाल कि इतने सालों बाद आप इस पूरे मामले को लेकर क्यों बात करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि अगर कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसके बाद हुआ क्या? क्या आप हमारे साथ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सर जी, मैं तो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ, 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 23 ਤਰੀਕ ਹੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ बेटी ਦੀ वो हॉस्पिटल 'ਚ ਹੀ ਸਰਦੀ ਰਹੀ, और उसके बाद इन्होंने मेरे पिंड ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਦ ਹੀ ਐਸਪੀਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਰਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ
60 ਤੋਂ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ PO ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। PO ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੀ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮੈਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇੱਕ SP ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਖੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ मैं आप किते होर रहन लग पे जी आके। बुरा ना माने तो मैं एक बार आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगला सवाल अगर आप हिंदी में बात करें तो हमारे लिए भी आसानी होगी इस सवाल करने के लिए। सिमरनजीत जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया वो कि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था, पुलिस की ओर से दबाव बनाया जा रहा था लगातार, और ये भी जो पीड़ित के पिता कह रहे हैं कि उनसे ब्राइब लेने की कोशिश की गई थी। क्या आप खुलकर बता सकते हैं कि आखिरकार ये कौन से ऐसे अफसर हैं जिन्होंने ना ही रिश्वत मांगी, दूसरी तौर से एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की ताकि ये केस रफा दफा किया जाए? IPS अफसर है और SSP है वो, और उसके बाद SP है जम्मू का, जो उन जशन गिल की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। एक DSP, SSP और इंस्पेक्टर और थाने का मुंशी होता है, जो ये सब लोग बीच में मिले थे, और एक डॉक्टर है जो सरकारी हॉस्पिटल का, वो भी साथ में मिले हैं। और इन पे आज इतना दबाव डाल रखा है कि फैसला कर लो, नहीं तुम्हारा इल्जाम बहुत बुरा होगा कि तुम्हारे लड़के को चिट्टे के केस में अंदर डाल देंगे। यानी स्मैक के केस में इन लड़के को डरा रहे हैं कि तुम्हारे जो लड़का है ना, छोटा बच्चा है, +2 के एग्जाम दे रहा है, वो उसको फंसा रहे हैं वो कि तुम्हारे लड़के को स्मैक के केस में अंदर डलवा देंगे जेल में। और जो इनके फादर साहब हैं उनको बोले तुम्हारा जम्मू में जाके काउंटर करवाएंगे, क्योंकि उनका वहां पे SP है, IPS अफसर लगा SP, और वहां पे जाके इनका काउंटर कराने की कर रहे हैं कि इनका काउंटर हो जाए। और जो ये सर धारा लगाई थी ना 376 और 304 और 304 सिमरनजीत जी क्या बता सकते हैं कि ये पास्टर जशन गिल, उनका इन्फ्लुएंस कितना है? क्योंकि जिस तरीके से हमने पास्टर बजिंदर का देखा था कि एक पॉलिटिकल लिंक उभर कर आ रहा था, और दूसरी तरफ जिस तरह से उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था, क्या जशन गिल ऐसे ही हैं? क्योंकि जिस तरह से 2023 की बात किया जाए, केस रजिस्टर होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते, क्या आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला है उनको? बिल्कुल सर, यही चीज है कि देखो उन पे जो एक DIG है, IPS अफसर, DI, पूरा प्रशासन उनके हाथ में है। जैसे कि बलजिंदर पास्टर में हाथ में था, ऐसे ही इन लोगों का है, क्योंकि इनको फंडिंग वगैरह सब कुछ बाहर से आती है। क्योंकि जो हमारे पंजाब में एक धर्म के नाम पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है, इनको फंडिंग बाहर से आती है, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं ये, और ये पैसा फिर पुलिस को बांटते हैं। कोई एक गलत काम करते हैं और पुलिस इनको हाथ नहीं डालती। जैसे कि दीनानगर पुलिस आज 2 साल के इनको अरेस्ट नहीं किया, और 1 साल इसको PO हो गए कि PO हो चुका है, PO भगोड़ा घोषित हो चुका है। और जो दीनानगर पुलिस ने इसको आज तक इसके घर पे कोई पोस्टर नहीं लगाया, और पुलिस को जाते हैं कि भाई इसको पकड़ो, पुलिस बोलती पुलिस हमारा काम कर रही है, तुम बीच में मत आओ। पर हमारे को ऐसा कहीं नहीं मिला कि पुलिस हमारा काम कर रही है। आज 2 साल हो गए हमारे को दर की ठोकरें खाते हुए, आज तक हमारे को न्याय नहीं मिला। लड़की के पापा को आज तक न्याय नहीं मिला। मेरे को जब इनकी हेल्प मांगने की कॉल आती है तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारी मैं हेल्प करूंगा। जैसे कि बलजिंदर पास्टर को सलाखों के पीछे भेजा, ये तो कौन सी बड़ी बात है, इनको भी सलाखों के पीछे भेज के छोड़ेंगे हम। पिता से भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि लगातार आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। आपने आखिरी बार पुलिस से कब बात की और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और क्या आपने कुछ पॉलिटिकल नेताओं से आपने बात की इस पूरे मामले को लेकर? कोई भी आश्वासन आपको दिया गया था?
मैं जी आम पार्टी का MLA ही शमशेर सिंह जी, मैं उसके पास भी गया था सर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसको अरेस्ट करा देंगे जी। और बाद में वो बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम थोड़ा बहुत आपको पैसा दिला देते हैं जी। तो और जो पुलिस वाले थे, तो पुलिस वाले भी मुझको यही बोलते थे। जब मैं थाने में जाता था वहाँ पे मुझको 2-2, 3-3 घंटे बिठा देते थे और उसके बाद मुझको बोलते अब तुम चले जाओ। मुझको हरासमेंट करते थे और बोलते थे अगर तुमने राजीनामा करना है तो कर ले, तो हम तुझको पैसा दिला देंगे, अगर नहीं करेगा तो हम तुझ पे और तेरे बेटे पे केस बना के डाल देंगे और तुम दोनों बाप बेटा मर जाओगे जी। और मैं डरता ही अपना गांव छोड़कर किसी और शहर में अब रह रहा हूं जी। क्या आपके ऊपर पिछले कुछ महीनों में जानलेवा हमले हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, लगातार आपको थ्रेट किया जा रहा था, अब किसी तरह की पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है कि आप कंप्लेंट को विड्रॉ कर लीजिए? जी इसका भाई जो है डैनियल गिल गांव का सरपंच है जी, सरपंच है, और वो मतलब प्रेशर बना रहा है कि तुम राजीनामा कर लो, हमारा कुछ भी नहीं होगा और तुमने आज तक क्या कर दिया हमारा। और इसका एक भाई बख्शीश चंद है जो SPD के साथ लगा हुआ है जी, तो वो भी बोलता है हम SPD को बोल के, और एक बार मुझको वहाँ पे बुला के उन्होंने बोला भी अगर राजीनामा करना है तो कर ले, हम तुझको पैसे दिला देंगे और तेरा कुछ भी नहीं बनेगा जी। उसके बाद मैंने अपना गांव जो छोड़ा हुआ है जी, मुझको आज 1.25 साल हो चुके हैं, अपना गांव छोड़ दिया मैंने जी। अपने बाल बच्चों को लेके कहीं और पे रह रहा हूँ जी। और जब मैं कभी पुलिस से बात करता हूँ वो तो ना मेरा फ़ोन उठाते हैं ना मेरे साथ जाते हैं। अब जब कि मेरे पास मैंने जी जब वो PO के कागज जज साहब ने PO उनको किया हुआ है जी, जे PO के कागज है जी। और उसके बाद जी मैंने जो थाने का SHO साहब हैं उनको जाके बोला भी ये जम्मू में चर्च लगा रहा है जी और मेरे साथ चलो, इसको पकड़ना है, और वहाँ पे उनको डायरी नंबर किया हुआ है जी। और फिर मैंने SSP साहब के पास 2 बार गया था जी। मेरे गांव का सरपंच मेरे साथ गया था और वो वकील साहब भी है, वो मेरे साथ गए थे, लेकिन SP साहब ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और उसके बाद मैंने SSP साहब को डाक के जरिए उनको ये डाक की रसीद है, उनके जरिए मैंने ये फोटोकॉपी डाली भी, वो जहाँ जम्मू में चर्च लगा रहा है, आप मेरे साथ चलो और उसको पकड़ना है जी। पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही जी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने पास्टर बजिंदर के खिलाफ और उनके खिलाफ जितने भी एविडेंस है सबको हमने दिखाया, सिमरनजीत, और आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से हम लोग इस पूरे मामले को सबको दिखाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कब तक ये चलेगा। थैंक यू वेरी मच for joining us on this broadcast, ladies and gentlemen. You've heard the story